Hi friends, on continuation of chapter number 4, chemical bonding. Today's topic is all about orbital overlapping. It's a precursor of hybridization. अगर hybridization को अच्छे से समझना है, so at least you get idea about what actually means by orbital overlapping. Orbital overlap कैसे होते हैं, वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So let's start. How many orbitals are there till time? In chapter number 2, we already discussed about s orbital, p orbital and d orbital. S orbital are more symmetrical, spherical in nature, so that is your s orbital. In chapter number 2 we already discussed p orbital, p having three subparts, that is px, py, pz. Directional, x-axis directional, y-axis direction, z-axis direction, so that is p orbital. P orbital having dumbbell shape. And d orbital having double dumbbell shape. Why? Just because d is subdivided into 5 parts, that is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. So d orbital having double dumbbell shape. F does not have any fixed shape, so that's why we are not introduce any f orbital over here. So once again there are 3 types of orbital. उसके लिए हमें डिस्कशन करना है कैसे ओवरलैप होंगे और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल होगी. सो S स्फीयरिकल, P डम्बेल शेप, D डबल डम्बेल शेप. नाउ विल स्टार्ट विद द ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट. ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल interpenetrations of atomic orbital. The important characteristics of orbital overlapping are, first of all we'll discuss the characteristics. Means what actually means by overlapping. One orbital overlap with another orbital. ये सारी चीज सबसे पहली चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं? Just because we have to introduce a hybridization. Now hybridization क्या है? Hybridization is all about any molecule having symmetry and geometry. तो सबसे पहले सर मॉलिक्यूल कैसे बनता है? सो मॉलिक्यूल बनता है एटम नजदीक आने से. जैसे हमने प्रीवियस सेशन वैलेंस बॉन्ड में देखा, हाउ दिस वन हाइड्रोजन कम्स टुगेदर विथ अनदर हाइड्रोजन एंड गिव्स यू H2 मॉलिक्यूल. तो क्या एक H एटम दूसरे H एटम के पास आता है तब डायरेक्ट एटम अप्रोच करता है? नहीं, एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच करती है. दैट इज AO. शॉर्टकट इज AO. AO स्टैंड्स फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल. वन एटम हैविंग एटॉमिक ऑर्बिटल, अनदर एटम हैविंग एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ओवरलैपिंग होगा एंड ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स. A covalent bond is formed by overlapping of half-filled atomic orbital present in a valence shell or a atom. The overlapping orbital should contain electron with opposite spin. Means one atom having one electron, another atom having another electron. दोनों की spin opposite होनी चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ attract होंगे, overlap होंगे and वहाँ पे आपको overlapping मिलेगा. So let's discuss a very simple example of SS overlapping. So जो हमने last characteristics पढ़ा उसका एक simple सा example. Here in case one s orbital, another s orbital, दोनों के अंदर oppositely spin available है. When this two orbital comes together, you get overlap orbital like this. One s, another s एक दूसरे के साथ overlap हुई एंड जो ओवरलैपिंग की जगह है वहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिटली चार्ज और अपोजिटली साइन यहाँ पे आ गए. सो दिस इज कॉल्ड SS ओवरलैपिंग. सो पॉइंट 1 फिर से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द ओवरलैपिंग ऑफ half-filled atomic orbital present in a valence shell of atom. The overlapping orbital should contain electron with opposite sign. Second, as a result of overlapping, what is the conclusion? Overlapping का conclusion क्या है? As a result of overlapping, electron get paired. हमने अभी देखा SS का overlapping.
एंड स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। बेसिकली आप वो जो एसएस ओवरलैपिंग था आप उसको हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हो कंबाइन। व्हाई? बिकॉज वन हाइड्रोजन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, अनदर हाइड्रोजन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आए, ओवरलैप हुए और क्या मिल गया आपको? H2 मॉलिक्यूल। थर्ड पोस्टुलेट, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सिंपल कंसेप्ट, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्गर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज type of overlapping. There are two types of overlapping, that is axial overlapping. Axial overlapping basically sigma bond form करता है and lateral overlapping वो generally pi bond form करता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा, C ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C के अंदर जो सेंटर वाला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है एंड अबव एंड बिलो जो बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड सर क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, उसका डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। लेट्स स्टार्ट विथ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। फर्स्ट इज एक्सियल ओवरलैपिंग। If the overlapping of atomic orbital takes place along the internuclear axis, it is called axial overlapping, or it is also known as most important end-to-end overlapping. A bond formed by this axial overlapping is known as sigma bond. So SS and PP when overlap on the axis are known as axial overlapping. SS only take part on axial overlapping. लेटरल ओवरलैपिंग कभी भी SS के साथ फिजिबल नहीं है। S इनर ऑर्बिटल होते हैं विच इज मोर सिमेट्रिकल, मोर स्टेबल, सो ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्सियल ओवरलैपिंग। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ऑल द सिंगल बॉन्ड, माइंड वेल, ऑल द सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते हैं, एक ही सिग्मा बॉन्ड है। रिमेनिंग 2 आर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बारे में हम नीचे ही डिस्कशन करते हैं। अ सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय ओवरलैपिंग फॉलोइंग वेज। कौन कौन से वे पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा? तो सबसे पहला SS ओवरलैपिंग। हियर द ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड S ऑर्बिटल take place along with this internuclear axis। अब S spherical symmetrical तो उसके अंदर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस नहीं होता है, सिंपल ओवरलैपिंग होगा SS के बीच में एंड यू गेट योर SS ओवरलैपिंग। नेक्स्ट इज SP ओवरलैपिंग। इट अकर विद द ओवरलैपिंग ऑफ 1 हाफ filled electron of S and 1 half filled electron of P। and last is PP overlapping when 2 half filled p orbital of 2 atoms are overlapped and we get PP overlapping। अब ये ओवरलैपिंग क्या होता है, कैसे होता है, पिक्चोरल डायग्राम से डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पिक्चोरल डायग्राम ऑफ ओवरलैपिंग। होप आप लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से पढ़ लिया है। एंड देन ओवरलैपिंग आर 2 टाइप्स एंड ये ओवरलैपिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एक्सियल वन, SS के बीच में ओवरलैपिंग होगा तो दिस इज 1 S ऑर्बिटल, दिस इज अनदर S ऑर्बिटल। दोनों जब भी ओवरलैप होंगे तो इट्स लुक लाइक दिस इज कॉल्ड ओवरलैप्ड एरिया। जानबूझ के उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के कलर चेंज कर लिए हैं तो आपको पता चले कि ओवरलैपिंग जहां पे होती है, ओवरलैप्ड एरिया जो होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इट डज नॉट मीन वन एटम फ्यूज्ड इन अनदर एटम। माइंड वेल, ओवरलैपिंग का कंटेंट एक हद से ज्यादा नहीं हो सकता है, वो भी एक ध्यान रखिएगा। सेकेंड ओवरलैपिंग होता है S and P के बीच में। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस SP ओवरलैपिंग। सेकेंड ओवरलैपिंग का टाइप 1S and 1P। नाउ SP ओवरलैपिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक, दोनों तरफ से हो सकता है। फ्रंट मीन्स S and P, दिस इज ओवरलैप्ड पार्ट। हियर इन केस बैक, दिस इज
P, दिस इज S, ओवरलैप्ड पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन है. So ये हो गया आपका sp overlapping. And last and third type, that is called pp overlapping. One p orbital, another p orbital overlapped with each other. ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा, ये ओवरलैप हुआ, ओवरलैप्ड एरिया जहां पे है वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. दिस इज कॉल्ड pp overlapping. So एक्सियल के अंदर 3 सब पार्ट थे, ss overlapping, sp overlapping, and third is pp overlapping. So this is all about your axial overlapping. Now lateral overlapping के बारे में डिस्कशन करते हैं. Next, lateral overlapping. Here the overlapping takes place perpendicular to this internuclear axis. Most important first line, here the overlapping takes place perpendicular. So let's take example कि ये अगर आपका x एक्सिस है तो यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन की तरफ, मीन्स यहाँ पे ऊपर आपका होगा परपेंडिकुलर, ये नीचे एक्सिस पे है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है. दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर जब भी होगा वो इस हिसाब से होगा, मीन्स यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगा दैट इज अबाउट द प्लेन, दैट इज lateral overlapping. The bond formed as a result of lateral overlapping is called pi bond. Axial में किसको bond बोलेंगे? Sigma bond. This is pi bond. The electron in pi bond are called pi electron. Obviously वहां पे उसको sigma electron बोले थे, यहाँ पे उसके pi electron. A pi bond is always present along the sigma bonds. Means sigma bond के ऊपर या नीचे ही form होंगे. A double bond contain one sigma and one pi. Most important, CH2 double bond CH2 alkene. तो alkene के अंदर सर सिग्मा तो एक ही हो सकता है, तो एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड है. तो सर अल्काइन के अंदर क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सेंटर वन इज सिग्मा, above and below there is a pi. A triple bond contains one sigma bond and two pi bond. A sigma bond is stronger than pi. This is because the extent of overlapping is greater in case of sigma as compared to this pi. Perfect. So वही सारे के सारे ओवरलैपिंग यहाँ पे भी मैंने पिक्चरल डायग्राम में बताया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. SS ओवरलैपिंग इस हिसाब से होता है. देन SP ओवरलैपिंग हमने देखा एक्सियल के लिए, एंड लास्ट हमने देखा PP ओवरलैपिंग. अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेटरल ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. ये देखिए, ये आपका हो गया py के बीच में. दिस इज वन p ऑर्बिटल, दिस इज वन p ऑर्बिटल. ये परपेंडिकुलर मीन्स यहां से ऊपर की तरफ, दिस इज परपेंडिकुलर. तो ओवरलैपिंग ये नोट और ये नोट, ये नोट और ये नोट में होगा. देखिए, that is called PP sidewise overlapping, that is called lateral overlapping. Lateral overlapping always gives you this pi bond. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने डिस्कशन किया अल्कीन एंड अल्काइन, उसके अंदर कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता होगा वो डिस्कशन करते हैं. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ऊपर जो हमने पढ़ा वो इस हिसाब से था, एक्सिस के पैरेलल, कोई परपेंडिकुलर नहीं था, एक्सिस के पैरेलल ही है. देखिए अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, दिस इज py, दिस इज py. ये एक्सिस पे नहीं हो रहा है, एक्सिस के अबाउ हो रहा है. देखिए आइदर ऊपर की तरफ अबाउ द प्लेन, आइदर बिलो, मींस दिस नोट टू दिस नोट एंड दिस नोट टू दिस नोट. इट्स डिपेंड. अगर इलेक्ट्रॉन ये नोट पे हुआ तो ऊपर पाई बॉन्ड बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की नोट में हुआ तो बिलो द प्लेन पाई बॉन्ड बनेगा. इसीलिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ना दिखाते हुए ओवरलैप्ड एरिया दिखाया हुआ है. आइदर ऊपर की तरफ पाई बॉन्ड शो होगा, मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, आइदर नीचे की तरफ शो होगा. ये सर ऊपर और नीचे किस हिसाब से होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल विल डिस्कस अल्कीन एंड अल्काइन. देखिए सबसे पहले अल्कीन देख लेते हैं. दिस इज आवर अल्कीन मॉलिक्यूल. फाइन. सो इन अल्कीन मॉलिक्यूल दिस इज आवर कार्बन. above the plane there is a p orbital, below the plane there is a p orbital. अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की p ऑर्बिटल में हुआ तो पाई बॉन्ड फॉर्म ऊपर की तरफ होगा. अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ऑर्बिटल में फिल हुआ तो पाई बॉन्ड नीचे की तरफ होगा. तो कोई भी आपको पूछे कि इन अल्कीन विच इज सिग्मा एंड विच इज पाई,
तो आपका आंसर होना चाहिए इट्स डिपेंड वेयर द पाई क्लाउड इज फॉर्म्ड और वेयर द पाई इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड। इफ इट इज अबाउ द प्लेन then we have a pi above and sigma below, and if it is formed below the plane then above sigma and below is pi. Once again I repeat my words, in CH2 double bond CH2 which is sigma which is pi, so you have to tell if pi cloud form above the plane then pi is above, sigma is below, and if pi cloud form below the plane, above is sigma, below is pi. अब अल्काइन के अंदर क्या होगा सर? अल्काइन के अंदर तो फिक्स ही है, सेंटर इज योर सिग्मा 1, अबाउ प्लेन इज ऑल्सो पाई, बिलो प्लेन इज ऑल्सो पाई, सिंपल लॉजिक। सी ट्रिपल बॉन्ड सी के अंदर सेंटर 1 इज सिग्मा, अबाउ एंड बिलो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओवरलैपिंग कंसेप्ट। एक छोटा सा पॉइंट चेक करना है हमें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, एंड देन नेक्स्ट सेशन में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। बट उससे पहले ये सेशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल हैविंग द इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। The new orbital are formed are known as hybrid orbital. I don't think कि मुझे आपको hybrid क्या होता है ये word समझाने की जरूरत है। Hybrid means intermixing. So when one s orbital overlap with one p orbital, you get new sets of orbital, that is sp hybridization. When one s orbital and 2p orbital are overlapped with each other, that is sp2 hybridization. In our syllabus we have total 5 hybridizations are there. कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट मैं खाली आपको यहाँ पे ग्लिम्स दे देता हूँ कौन कौन से हैं। So how many different types of hybridization? One is sp, another is sp2, third is sp3, sp3d and sp3d2. So which are the characteristics? Characteristics क्या है hybridization की? The number of hybrid orbital formed is equal to the number of atomic orbital undergoes hybridization. So कितने? Let's take example sp3. sp3 में कितने hybrid orbital बनेंगे? तो सर एक s और 3p इकट्ठा होगे 4 hybrid orbital बनेंगे, that is entitled as sp3 hybridization. The hybrid orbital are always equivalent in energy and identical in shape. Obviously just because s का शेप फिक्स है, p का शेप फिक्स है, तो sp3 जब भी फॉर्म होगा तो आइडेंटिकल शेप मिलेंगे। The hybrid orbital are more effective in forming a stable compound than the pure atomic orbital. True fact. The hybrid orbital are directed to some fixed point in a space so that hybridization gives you the shape of this molecule. So hybridization से आपको shape भी पता चलेगा। जैसे sp hybridization हो तो linear shape होगा। कैसे? वो next session पूरा hybridization करने वाले आपको पता चल जाएगा। Last important conditions for hybridization. तो important condition कौन कौन सी है? तो first condition, the orbital present in valence shell of atom are hybridized. जो valence shell की जो orbital है वही hybridized होगी। Inner shell orbital cannot taking part in a hybridization. The orbital undergoes hybridization should have almost equal energy. Means s का directly d के साथ bonding नहीं possible है। क्यों? क्योंकि s की energy d की energy से बहुत difference है। हाँ, but p and d can. Promotion of an electron is not essential condition before hybridization. Before hybridization, electron excite करके next stage पे भेजना it is next to impossible. Only in case of hybridization this is feasible. Completely filled orbital valence shell can also take part in hybridization. Now hybridization से आपको क्या पता चलेगा? Sharing of orbital. Orbital का partnership कितना है वो पता चलेगा. That is called s character and p character. In sp3 hybridization s character is 25%. s character का मतलब partnership दोस्तों। अब sp3 का मतलब क्या होगा? तो ब्रैकेट में लिखा है 1s and 3p, टोटल कितना हुआ? 4 ऑर्बिटल। मान लीजिए 1 गर्ल एंड 3 बॉय।
आर हैविंग अ पार्टनरशिप एंड वो लोग एक कैफे डाल रहे हैं, तो टोटल कितने लोगों की पार्टनरशिप हुई? 4 लोगों की। अब मान लीजिए शेयरिंग कितना होगा, तो 1 गर्ल हैविंग 1/4 एंड 3 बॉयज हैविंग 3/4, तो एस का कैरेक्टर कितना हो गया? 25, और पी का कैरेक्टर मीन्स गर्ल्स का कितना पार्टनरशिप हुआ? 25%, पूरे बॉयज का कितना हुआ? 75%। लाइकवाइज इन केस ऑफ sp2 कैसे बनता है? तो 1s एंड 2p ऑर्बिटल से। टोटल कितने ऑर्बिटल हुए? 3। तो s कैरेक्टर कितना होगा? 1/3 मीन्स 33%। p कैरेक्टर कितना होगा सर? 2/3, तो वो टोटल कितना हो जाएगा? 66। एंड लास्ट sp कैरेक्टर नेम इटसेल्फ सजेस्ट एक s और एक p, टोटल 2 ही ऑर्बिटल है, तो टोटल 2 ऑर्बिटल, तो 50-50% पार्टनरशिप, 1 गर्ल 1 बॉय, 50-50 पार्टनरशिप। सो दिस इज ऑल अबाउट योर s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी टू दिस हाइब्रिडाइजेशन। ये पांचों की पांचों हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल विथ वन एग्जांपल ऑफ ईच डिस्कशन करना है। So this is all about from today's session. Next session will discuss about hybridization, most important session. Definitely 1 or 2 hybridization gonna ask in your examination. So अच्छे से next session check कीजिएगा. Thank you.